Hello viewers, this is our third lecture on environment science and engineering, and the topic of this lecture is introduction to air pollution. As we know that a healthy person breathes about 21,000 to 23,000 times and uses about 16 kg of air for inhalation in a day. If this air is contaminated, then you think about the effect of this polluted air on living organisms and human beings. According to World Bank study, the number of premature deaths due to air pollution in India has increased by more than 30%. The common example of this pollution is indoor air pollution. वायु प्रदूषण का परिचय। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग 21,000 से 23,000 बार सांस लेता है और एक दिन में लगभग 16 किलो हवा का उपयोग सांस के लिए करता है। यदि यह वायु प्रदूषित है तो आप इस प्रदूषित वायु के जीवों और मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचें। विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले होने वाली मौतों की संख्या में 30% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस प्रदूषण का सामान्य उदाहरण इंडोर वायु प्रदूषण है। The indoor air pollution is more harmful to health because people are close to the places of combustion. The indoor air pollution caused by the combination of non-commercial sources such as biofuels in homes which are not properly ventilated. It kills thousands of young children and women every year. इंडोर वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए अधिक हानिकारक है क्योंकि लोग दहन के स्थानों के करीब हैं। घरों में जैव ईंधन जैसे गैर व्यावसायिक स्रोतों के दहन के कारण होने वाले इंडोर वायु प्रदूषण जो ठीक से हवादार नहीं है, हर साल हजारों छोटे बच्चों और महिलाओं को मारता है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द critical issues related to air pollution. Basics of air pollution. The air pollution is defined as the undesired material present in the atmosphere which are either injurious to health of living organisms or harmful to the materials. The main transporter of these pollutants is wind, which moves these pollutants from one place to another. इस व्याख्यान में हम वायु प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण की मूल बातें। वायु प्रदूषण को वातावरण में मौजूद अवांछित सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सामग्री के लिए भी हानिकारक है। इन प्रदूषकों का मुख्य वाहक वायु है जो इन प्रदूषकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। द मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स, माइंस, मोटर व्हीकल्स, म्युनिसिपल वेस्ट एंड volcanoes. The atmosphere contains a large air pollutant and these are related from the following two sources. Number one, natural sources. The common natural sources of air pollution are volcanoes, forest fire, desert storms, high winds and cyclones, salt spray from oceans and seas, decomposition of organic matter and emission from animals and plants. वायु प्रदूषक के स्रोत। वायु प्रदूषक के मुख्य स्रोत उद्योग, बिजली संयंत्र, स्मेल्टर, खदानें, मोटर वाहन, नगर पालिका अपशिष्ट और ज्वालामुखी हैं। वायुमंडल में बहुत बड़े वायु प्रदूषक हैं और ये निम्नलिखित दो स्रोतों से संबंधित हैं। नंबर एक, प्राकृतिक स्रोत। वायु प्रदूषक के सामान्य प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी, जंगल की आग, धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और चक्रवात, महासागरों और समुद्रों से नमक के छिट्टे, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन और जानवरों और पौधों से उत्सर्जन है। Second is anthropogenic sources. The anthropogenic sources of air pollution includes industries, power plants, motor vehicles, grinding operations, cooking, household heating operations, burning of municipal waste and various industrial processes. मानव जनित स्रोत। वायु प्रदूषण के मानव जनित स्रोतों में उद्योग, बिजली संयंत्र, मोटर वाहन, पीसने का कार्य, खाना पकाने, घरेलू ताप संचालन, नगर पालिका कचरे को जलाना और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। Classifications of air pollutants. The natural and anthropogenic sources of air pollution are further classified as primary pollutants and secondary pollutants of earth. Primary pollutants. These are the pollutants which come directly from a source of pollution. For example, the gases which comes directly from chimney of boiler, the exhaust which comes from the cars or trucks, the exhaust gases of volcanoes rupture in the crust of earth, which includes hot lava, volcanic ash and gases which escapes from a magma chamber. वायु प्रदूषकों का वर्गीकरण। वायु प्रदूषक के प्राकृतिक और मानव जनित स्रोतों को आगे प्राथमिक प्रदूषकों और द्वितीय प्रदूषकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक प्रदूषक
ये वे प्रदूषक है जो सीधे प्रदूषक के स्रोत से आते हैं। उदाहरण के लिए बॉयलर की चिमनी से सीधे आने वाली गैसें, कारों या ट्रकों से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखियों की निकास गैसें जो पृथ्वी की पपड़ी से फटकर आती हैं, जिसमें गर्म लावा, ज्वालामुखी राख और गैसें शामिल हैं जो एक मैग्मा कक्ष से निकलती हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, these are the pollutants that are formed as a result of a subsequent reaction with a primary pollutant. Example, smoke, a combination of smoke and fog, which is formed when oxides of nitrogen combine with the hydrocarbons in the presence of sunlight. Basically, the secondary pollutants are those which formed by the action and reaction of primary pollutants with the environment in the presence of sunlight, because we consider sun as the main source of energy. माध्यमिक प्रदूषक, ये वे प्रदूषक हैं जो प्राथमिक प्रदूषक के साथ बाद की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं। उदाहरण स्मॉग, धुआं और कोहरा का एक संयोजक है। जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ते हैं, मूल रूप से द्वितीय प्रदूषक वह कहलाते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्यावरण के साथ प्राथमिक प्रदूषकों की क्रिया और प्रतिक्रिया से बनते हैं, क्योंकि हम सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत मानते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिंग आप तक निरंतर पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।